Okay, so let us proceed further for the rotational dynamics. We are solving the MCQs from NCERT at fingertips. Uh, we'll proceed further with question number 49 onwards. For translational equilibrium, what do we say here? For translational equilibrium, we know that. Can you tell me what is it? For translational equilibrium, summation of all the moments, summation of all the forces is equal to 0. Okay. For rotational equilibrium, we say the summation of all the torques is equal to 0. Now AR and BS, AR और BS जो है वो ऑप्शन डी है. AR and BS is option D. So I think I got my answer here. It is option D. CP क्रॉस चेक करते हैं. CP moment of inertia of the body, correct है. And DQ torque is required to produce the angular acceleration. Torque is required to produce angular acceleration. So that is it. We'll go for the next question now. Question number 49 is over. Question number 50 देखते हैं. ये रहा. The radius of gyration of a uniform rod of length L about an axis passing through one of its ends and perpendicular to its length is. They are talking about the radius of gyration of a uniform rod. रॉड की बात हो रही है. सपोज ये है रॉड. सो रॉड का ये रहा सेंटर and we want the moment of inertia about an axis passing through this. Okay, well, let me consider this is the axis passing through its center. Okay, and this is the axis which is passing through end A. So मुझे चाहिए this moment of inertia is called as IC and this moment of inertia is called as IO. The length of the rod is length of the rod is L. L is the length of the rod. So the length of the rod passing through the हाँ ये जो आधा length है, this is H is equal to L, isn't it? And I'll write here the parallel axis theorem. IO is equal to IC plus MH square. IC, so the moment of inertia about an axis passing through the center is M L square upon 12. This is M L square upon 12 plus M, this is L by 2, L by 2 का square. तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा M L square ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 upon 12 plus 1 upon 4. Now I'll multiply this by 3 and divide it by 3 so that this becomes, what does it become? ये बन जाएगा M L square, this will become 3 plus 1, 4 upon 12. So 4 3s are 12. 1 So by this is M L square upon 3. Now I'll compare this with MK square क्योंकि उनको चाहिए radius of gyration and therefore this will give me K is equal to L upon root 3 and C is the answer. I hope this is clear. Okay, yes. proceed. Yeah, let us proceed further now. अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Theorem of perpendicular and parallel axis. Now these are the questions based on the perpendicular and parallel axis. Okay,
टू मासेस क्या दिया है यहाँ पे, टू masses each of mass m are attached to the end of a rigid massless rod of length L. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of the mass and perpendicular to its length. Hmm. So there is a rod, they say basically वहाँ पर एक rod है, समझो कि ये रहा rod. There are two masses which are attached to the end of a rigid rod. तो ये रहा पहला mass यहाँ पे है. So this is the hmm. So here our first mass is capital M, and this is the second mass, again capital M, and this length of the rod is L. The moment of inertia of the system about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the length. तो ये रहा उसका center of mass, so this will be the axis. ठीक है, तो इसका moment of inertia हम कैसे लिखते हैं, m1 r1 square plus m2 r2 square, मतलब this is m into L by 2 का square plus m into L by 2 का square. So this is 2 times ml square by 4, and that is equal to ml square upon 2. So the answer is B. Is this okay? Alright, we'll go for the next Yes, sir. question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Question number 52. From the center, from a circular disc of radius r, mass is 9m. ये डायग्राम थोड़ा सा मैं बड़ा और एक बार इसका सेपरेटली मैं पिक्चर ले लूँगा. ये जो डायग्राम है, so this is the total disc radius is r. The small disc of radius r by 3 is removed as shown in the figure. The moment of inertia of the remaining disc, the moment of inertia of the remaining disc, ये स्टार प्रॉब्लम है. This is a star problem. Remaining disc about an axis perpendicular to the plane of the disc and passing through O. तो ये वाला पार्ट रिमूव किया गया है. जैसे दैट यहाँ से ये वाला पार्ट, दिस इज द टोटल डिस्क. तो उस डिस्क में दिस पार्ट इज रिमूव्ड. दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. देखते हैं कैसे करना है इसको. अच्छे, तो वी आर टोल्ड दैट द मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, ये जो टोटल डिस्क है, डिस्क ऑफ मास इज दिस, इसका मास इज 9m. ये जो बड़ा वाला डिस्क है उसका मास इज 9 टाइम्स m. मास इज 9 टाइम्स m. ठीक है, तो टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, what will be total mass upon total area? Mass
upon total area. Now this is called as mass per unit area. Mass per unit area. Total mass is 9m and total area is pi r square. ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए, अगर ये है, नाउ 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 आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मास ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन। आप इसको यूज करो या फिर एक यूनिटरी मेथड से लिखो कि भाई मास एंड एरिया। अगर एरिया इतना है तो मास उतना है। एरिया इज पाई आर स्क्वायर, करस्पॉन्ड्स टू मास इज 9m। तो अगर एरिया पाई r by 3 square होगा, then what is that mass? I'll call it as small m and it is equal to pi r square upon 9 into 9m divided by pi r square. Okay, now that is equal to, इसमें से pi r square gets cancelled, 9 gets cancelled, so the mass of the removed portion is m. Mass of the removed portion is m, I think. चलो, so what is this going to be? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ यहाँ पर मैं दो पार्ट्स कंसिडर करूंगा। एक है n/2 n, सो ये जो डिस्क है, इफ आई कंसिडर द डिस्क हियर, सपोज if I consider the disk here like this, ये समझो कि बड़ा डिस्क है, सपोज दिस इज दैट बड़ा वाला डिस्क। ओके, इस बड़े वाले डिस्क में से एक छोटा सा पार्ट हटा दिया हमने, as we see here, this is the small portion which is removed, this is this very small portion which is removed, यहाँ से ये वाला पार्ट हटा दिया है ना। ओके, तो ऐसा है। तो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट दिस एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे चाहिए, if I want the moment of inertia of this, the mi of this smaller mass about this axis, ये होगा c। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज ic और यहाँ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज io। सो ic कितना होगा यहाँ पे? ic फॉर स्मॉलर मास, for smaller mass, for smaller mass ic is equal to half, it's a disk, mass is m and radius is r by 3 का square, so this is mr square upon 3 3 is 9 to the 18, and therefore by parallel axis theorem io is equal to ic plus m h square। so what is the distance between these two? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक रेडियस r है और यहाँ से यहाँ तक r by 3 है, so this h is equal to r minus r by 3, that is equal to 3r minus r 2r by 3, ऐसा हो जाएगा 3r minus r 2r by 3। so what will be io is ic, which is mr square upon 18 plus m into h is 2r upon 3 का square, so this will become mr square upon 18 plus 4 upon 9 mr square। now to take the LCM I'll multiply this by 2 and divide it by 2, तो कुल मिलाकर हो जाएगा, for io is equal to 4 to the 8 plus 1 9 mr square upon 18, that is equal to mr square upon 2, that will be the moment of inertia of the smaller, ये जो छोटा वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेकिन इसको रिमूव किया गया है, दे से इट्स रिमूव देयर, बराबर है क्या? नो अब जब उसको रिमूव नहीं किया गया है
जब उसको रिमूव नहीं किया, अब यहाँ पर मैं तीन, यहाँ पर इफ आई से फॉर स्मॉलर मास जो है इसको मैं I1 बोलूंगा. दिस इज I1 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर मास. अब अगर उसको रिमूव नहीं किया गया है तो हम जो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है वो कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन, टेल मी प्लीज. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ, एक्चुअली इट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ, दिस इज दैट बड़ा डिस्क. इस बड़े डिस्क के अंदर ये छोटा डिस्क है वहां पे, और अगर उसको रिमूव ना किया गया तो इट इज से दिस इज द स्मॉलर डिस्क, इजंट इट. तो ये जो स्मॉलर डिस्क है उसको मैं बोलूंगा नंबर 1, और ये जो दूसरा है इसे हम बोलेंगे नंबर, दिस विल बी आई, I'll call this as I2, मतलब 2. I'll call this as 2. ठीक है. सो I1 क्या होगा बता दो मुझे. I1 इज Mi of smaller disk, smaller disk about O. Mi of the smaller disk about O. एंड वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है. दिस इज mr square upon 2. What is I2? I2 is the Mi of remaining disk, remaining disk about O. और वो मुझे फाइंड आउट करना है. और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इफ आई ऐड बोथ ऑफ दिस, अगर इन दोनों को भी मैं ऐड कर दूं तो दैट विल गिव मी I which is equal to I1 plus I2, and that is Mi of total disk, Mi of total disk about O. और उसका फॉर्मूला होता है हाफ mr स्क्वायर, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mr स्क्वायर. सो वी गेट इट एज I is equal to I1 plus I2. इसमें से I मुझे पता है mr स्क्वायर अपॉन 2. ओके, pi mr 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 अपॉन 3. ये क्या होगा, मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया. 2 to the 4 and 3 to the 9, 4 to the 8 and 9 to the 10. This is a so. Huh? हाँ, अभी ये जो टोटल डिस्क का होगा वो कितना हो जाएगा पता है. हाफ एम आर स्क्वायर तो होना चाहिए, लेकिन द टोटल मास, ये जो टोटल मास है, टोटल डिस्क का मास वो 9m है ना. तो बस मुझे अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. दिस इज 9mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू I1 इज mr स्क्वायर अपॉन 2 प्लस I2, and therefore I2 is equal to 9 by 2 mr square minus 1 by 2 mr square is 8 by 2 mr square, and that is equal to 4 mr square. So that's the answer. ये वाला प्रॉब्लम है. अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है. लेट आने वालों को नहीं समझ में आया होगा, आई विल रिकमेंड देम कि आप लोग इसको बार बार देखिए, शायद समझ में आ जाएगा. नहीं समझा तो मुझे कल बता दो, मैं कल बता दूंगा आपको. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53. So 52 was a star problem. आप लोग देख लेना वो. ठीक है, आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 53 नाउ. चलिए शुरू करते हैं. अगेन दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. 53 इज आल्सो अ स्टार प्रॉब्लम.
52 तो स्टार था ही था, 53 is also a star problem. तो ये प्रॉब्लम है कि there's a rectangular plate as or square plate as they have got the same masses and same areas as well. I have to talk about the moment of inertia of these. इनके moment of inertia के बारे में मुझे बात करनी है. We have to conclude about the moment of inertia. So since the areas are same, area of rectangular plate equal to area of square plate. That means AB is equal to C square. बराबर है क्या? Isn't it? Now I'll talk about the first statement here. What is the first statement? Moment of inertia about x-axis for rectangular plate. कितना बनेगा डिवाइडेड बाय, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर प्लेट का क्या होता है? हैव यू गॉट एनी आइडिया कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला क्या होते हैं? ये बता देता हूँ. आई जस्ट टेल यू द फॉर्मूला हियर फॉर द रेक्टेंगुलर प्लेट. अगर ये ऐसा रेक्टेंगल होगा, देखिए गौर से, इफ इट्स अ रेक्टेंगल लाइक दिस, जिसका ये है ए एंड दिस इज बी, and if I am considering the moment of inertia of this about an axis, ये वाला जो axis है, I'll call this as Ix, x-axis. It is given by m a square upon 12. और वही अगर मैं moment of inertia about the vertical axis, if I am considering ये वाला axis, if I am making the rod to rotate like this, so I'll call this as Iy, and it is given by m, एक second, m a square, and this is mb square upon 12. और यही अगर रेक्टेंगुलर प्लेट में कुछ इस प्रकार कंसिडर कर लो, प्लीज चेक हियर, इफ आई कंसिडर द सेम रेक्टेंगुलर प्लेट लाइक दिस, वही रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो डायमेंशंस आर लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी, और उसके एक्सिस को अगर मैं देख लूँ, इफ आई से दैट लेट्स से दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, देखिए, ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस तो अपने को अभी अभी हमने देखा है, दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस. अगर मैं वहां पर और एक एक्सिस कंसिडर कर लूं, इफ आई कंसिडर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अगर ये एक्सिस में कंसिडर करूं, yeah, if I consider this axis, I'll call this axis as z axis. The moment of inertia about this z axis is given by Iz is equal to m a square plus b square अपॉन 12. ओके, अब यही चीज अप्लाई कर सकते हैं हम स्क्वायर के लिए भी, तो स्क्वायर के लिए भी यही चीज. नाउ इफ आई अप्लाई दिस ओवर हियर, अगर ये सब चीजें मैं यहाँ पर, तो व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इट विल बी गिवन बाय m a square upon 12, m a square upon 12. And what will be the moment of inertia about x axis for s, x axis, हाँ अभी ये देखो, जो अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तो ये दोनों भी a हो जाएंगे, दैट मींस दिस विल बी m c स्क्वायर अपॉन 12. सो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ these टू, अगर इन दोनों का मैं रेशियो ले लेता हूँ, इफ आई टेक द रेशियो ऑफ these टू, तो दैट विल गिव मी I xr divided by I xs is equal to a square upon c square, is equal to a square upon c square. This is what we get there. Any doubts so far? क्या ये समझ में आ गया आप यहाँ तक आप लोगों को? Hello, isn't it? Now, now I know that c square is equal to ab.
आई नो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, इसमें से a कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस इज a अपॉन b. नाउ आई कैन सी दिस क्लियरली, यहाँ पर ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि a और c में क्या रिलेशन है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. देखिए गौर से, इफ आई सी दिस a is greater than b, that means this is greater than 1, this is greater than 1. Is this okay? Isn't it? A square upon ab, a upon b, a x ए बी अपॉन सी स्क्वायर. एक मिनट है, एरिया एरिया मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, क्या एरिया लिखना चाहिए था मुझे, एक सेकंड. एम ए स्क्वायर एक्स अपॉन एम बी स्क्वायर. एक सेकंड, प्लीज होल्ड ऑन. लेट मी करेक्ट दिस. अगर ऐसा है रेक्टेंगुलर प्लेट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वन सेक, यहाँ पर मैं करेक्शन करना चाहता हूँ. देखिए यहाँ पे गौर से, अगर ये प्लेट है, इस प्लेट को अगर हम ऐसा देखते हैं, लेट्स से इफ आई लुक एट दिस प्लेट फ्रॉम हियर, let's say the plate is like this. Okay. और ऐसा ही और एक, ठीक है. So if I am considering the moment of inertia about y axis, about y, so Iy is given by m a square upon 12. Iy is equal to m a square upon 12. And Ix जो है, it will be given by m b square upon 12. देखो अगर यहाँ से हम देखते हैं उसको, इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, इफ आई एम सीइंग इट फ्रॉम हियर, तो मुझे सिर्फ एक रॉड के भांति ही दिखाई देगा. ये दिस विल बी सीन जस्ट लाइक अ रॉड. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. यहाँ से देखने के बाद वो एक सिर्फ ऐसा रॉड दिखाई देगा जिसका ये डायमेंशन a है एंड वी आर रोटेटिंग इट अबाउट दिस एक्सिस. अगर ऐसा, तो इसका रॉड का जो होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. और वहीं से अगर मैं यहाँ से उसको देख रहा हूँ, इफ आई एम लुकिंग एट फ्रॉम हियर, तो यहाँ से अपने को जो रॉड दिखाई देगा वो कौन से तरीके का होगा. अगेन यहाँ पर मुझे रॉड ही दिखाई देने वाला है. अगर यहाँ से भी देखूँ तो मुझे यहाँ पर भी ऐसा ही रॉड दिखाई दे रहा है, देखो. और वो उसको हम ऐसा घुमाएंगे अबाउट दिस डायमेंशन इज b, सो ये एम बी स्क्वायर अपॉन 12. तो मैंने जो ऊपर लिखा है उसमें मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा. इंटरचेंज क्या करना पड़ेगा, दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर. so this is going to be b square and this is going to be m a square. Ix is m b square upon 12 and this is m a square upon 12. तो यहाँ पर x एक्सिस अगर है तो यहाँ पर मुझे उसको b लेना पड़ेगा, b. I'll have to take this as b. So I'll take this as b, m b square, और this will be m b square upon 12. So this is b square. अब मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. सो दिस विल बिकम बी स्क्वायर अपॉन ए बी. इसमें से b गेट्स कैंसिल एंड दिस इज b अपॉन ए. नो यहाँ पर b स्मॉलर देन ए, सो दिस इज लेस देन 1. सो ये जो पहला स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं
whatever the first statement that they are saying is correct here. Ixr upon Ixs is less than 1. So this is the correct statement. अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर. I'll take the moment about y axis. So let me consider what is Iy for rectangular plate. Moment of inertia about the y axis. So it will be m a square upon 12. Similarly, what will be the moment of inertia about y axis for the square plate? वो तो same रहेगा, mc square upon 12. And if I take the ratio of these two, this will become Iyr upon Iys is equal to a square upon c square, but c square is equal to ab, and this is going to be a upon b. Now a is greater than b, so this is greater than 1. So ये second statement is also correct. This is the first statement. Ixr upon Ixs. This is Iyr upon Iys. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट हियर. इज दिस ओके? ऑलराइट. ये नया फार्मूला है, आपको दिया है, इसके लिए ये स्टार प्रॉब्लम है. आई विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पे. एनी डाउट्स अबाउट दिस? समझ में आ गया आपको? ये पता नहीं समझ में आ गया कि नहीं आया. हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? Sir, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 देखिए प्लीज. या क्वेश्चन नंबर 54. इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या दिया है, क्वेश्चन देखिए प्लीज. Moment of inertia of a solid sphere, the moment of inertia of a solid sphere of mass m and radius r about the tangent to the sphere. अब मुझे एक चीज बताइए, what is the moment of inertia of a solid sphere about an axis passing through the center? आप लोगों ने इसको लर्न तो कर ही लिया होगा ना. अगर ये स्फीयर है तो what is the, this is point C और ये tangent वाला point O है. So what is the moment of inertia of this sphere about this axis? ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको मैं बोलूँगा IC एंड दैट इज इक्वल टू 2/5 mr². और मुझे जो चाहिए वो है IO. दिस इज IO और वो मुझे चाहिए बिकॉज दिस इज इक्वल टू I tangent. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? ये दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज h एंड दिस h इज इक्वल टू r हियर. सो व्हाट विल बी, बाय यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम इसको कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बोथ द एक्सिस पैरेलल. सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं चाहूंगा I solved this all parallel axis theorem से. I'll go for question number 56 now. ये रहा question number 56. चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया है देखिए. These are the questions which are based on the kinematics of rotational motion about a fixed axis. मतलब ये जो linear motion और rotational motion, इसके जो फॉर्मूले हैं ना, all kinematical equations, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. इसके ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला है उसके ऊपर ये है क्वेश्चन. चलिए पढ़ते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में. एन एथलीट थ्रोज डिस्कस, क्या डिस्कस फ्रॉम द रेस्ट टू अ फाइनल. फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 इज इक्वल टू 0 to a final angular velocity omega 2 is equal to 15 radian per second. In टाइम ड्यूरेशन दिया है 0.27270 seconds बिफोर रिलीजिंग इट.
ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन डिस्क moves in the circular arc of radius r दिया है यहाँ पे 0.81 meter. The acceleration of the disk before it is released is, उसका acceleration पूछा गया है, ठीक है. एथलीट थ्रो डिस्कस, ये क्या होता है, डिस्कस क्या होता है पता है आपको? हेलो, डिस्कस क्या होता है? क्या होता है वो? चलिए वो घुमाता है बोल, जो भी शॉर्टपुट टाइप का कुछ चीज होगा, व्हाटएवर. It's तो like a यहाँ से metallic plate, which is used as a sport, so you see how far is it thrown, stuff. क्या क्या क्या, इट इज लाइक अ It is like a heavy metallic plate, not exactly like प्लेट. हाँ 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 हाँ, वो मतलब डिस्क but ही होता है ना वो, इट्स अ yeah, डिस्कस काइंड ऑफ थिंग. मेरे ख्याल से उसको कुछ है, नाम है उसको, डिस्कस मतलब हिंदी में उसको कुछ बोलते हैं, ऐसे पकड़ के वो घुमाते हैं गोल गोल और फिर ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है. चलिए कोई नहीं, तो यहाँ पर उसके लिए वेलोसिटी दिया है फाइनल इनिशियल टाइम, तो आई कैन फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी. यहाँ से आएगा वो, ओमेगा 2 इज 15 माइनस 0 अपॉन 0.27, so this is 150 upon 150 नहीं, yeah, एक दो एक दो 1500 upon 27, so this is like 3 5s are 3 9s are 500 upon 9 whatever, ठीक है. रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो हो गया दिस थिंग. नाउ एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क बिफोर इट इज रिलीज्ड, इसको रिलीज करने से पहले उसका एक्सेलरेशन. अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला देखा था, आपको अगर याद होगा, मैंने ये वाला पहले ही लेक्चर में दिया था फॉर्मूला. मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ. देखो, यही फॉर्मूला मैंने अभी अभी यूज किया है. आई हैव यूज दिस फॉर्मूला. और अब जो यूज करने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला में यही है, एंगुलर एक्सेलरेशन वाला, और इसका ये वाला. आई एम गोइंग टू यूज दिस AT इज इक्वल टू R अल्फा, यही यूज करने वाला हूँ मैं अभी. समझे क्या? आई एम गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला नाउ. चलिए देखते हैं. सो आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द acceleration of the disk before it leaves. So उसका एक tangential acceleration होगा, AT is equal to R alpha, radius is 0.81 into 500 upon 9, that is equal to 81 upon 9, so this is 9 meter per second square. ये तो tangential component of acceleration हो गया, but it has got rotational motion also, so it has got radial, या जिसको हम सेंट्रीपेटल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. आर रेडियस इज 81 अपॉन 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इज 225, ठीक है. सो ये हो जाएगा ए आर, दिस इज ए आर, एंड ये रहा 80, इजंट इट. और इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे मिलेगा 80 एंड ए आर का रिजल्टेंट मिलेगा मुझे. कितना आएगा वो रिजल्टेंट? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज दैट रिजल्टेंट? इज इक्वल टू OT is equal to R alpha. ये क्या हो गया? अल्फा. एक मिनट, शायद इन्होंने अपने को सिर्फ टेंजेंशियल ही पूछा है. एक सेकंड, दिस इज इनटू 5 ही तो आएगा. आई थिंक दैट्स द फाइनल आंसर. मिल गया अपने को आंसर यहाँ पर, क्योंकि ये होगा 9 9 81, 9 5 45, तो 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वही आंसर है अपना. सो आई नीड नॉट गो फॉर द फाइनल, ये मतलब जो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे. लेकिन अगर हम वो फाइंड आउट करते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो कितना आता है देखिए यहाँ पर. दिस विल बी वॉट एवर दिस, ये मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ता. एंड देन फाइनल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, और फिर वो सब्स्टिट्यूट करके मुझे फाइनल एक्सेलरेशन आ जाता.
अभी जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क व्हेन इट इज रिलीज्ड is 45. Is this clear to you? Is this okay? फॉर्मूले कर लो रे यार, तुम लोगों को बार बार मैं बता रहा हूँ, कल मेरे को सारे फॉर्मूले तुम लोगों के लर्न हो रखे चाहिए. ठीक है, कल सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के चाहिए मेरे को रेडी. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 57. यही काइनेमेटिकल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन है. ये क्या दिया है? इट सेज a flywheel rotating at 420 revolutions per minute. A flywheel rotating at, अब ये revolutions per minute दिया है, तो how can I find out the angular velocity? This is n, capital N दिया है, 420 revolutions per minute. उससे मैं small n find out कर सकता हूँ. This is 420 upon 60, so this is revolutions per second हो जाएगा. ओके, या तो फिर इससे मैं ओमेगा डायरेक्ट फाइंड, यहाँ से ओमेगा अगर फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाता है 2 पाई एन अपॉन 60, और यहाँ से अगर मुझे ओमेगा फाइंड आउट करना है तो वो सिंपली हो जाता है 2 पाई एन, क्योंकि पर सेकेंड वाला चीज़ यहाँ पर है और यहाँ पर मिनट है, इसके लिए 60. सो दिस विल बी गिवन बाय 2 पाई 420 अपॉन 60. इवेंचुअली आई विल गेट द सेम आंसर. तो ये हो जाएगा, देखो क्या होगा ये 6 7 जाना, so this will become 2 into 22 upon 7 into 7, that is equal to 44 radian per second. देखिए ओमेगा इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड. स्लोज डाउन, इट इज स्लोइंग डाउन. स्लोज डाउन मतलब अल्फा इज नेगेटिव देयर. कितना है नेगेटिव? मतलब है 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाईव्हील, that means this is omega 1 and final omega is 0. तो बस सिंपल फार्मूला है वो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का रोटेशनल फॉर्मेट क्या बोलता है? ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी. नाउ दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टाइम टी, और टाइम टी इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन अल्फा. ओमेगा 2 is 0, omega 1 that we have found out just now is 44 minus 44 upon minus 2. So it will take 22 seconds for the wheel to stop, and that's the answer. ये बहुत सिंपल था, मैं पूछूंगा भी नहीं कि ये समझ में आ गया कि नहीं, बहुत सिंपल था. I am sure about that you have understood this. Let me go for the last question here, 58 from this section. इस section का last वाला question कर लेते हैं. It says the angular speed of a motor wheel is increased from, ये रिवॉल्यूशंस पर मिनट है मतलब कैपिटल एन, 1200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट टू n2 3120 revolutions per minute in the time duration of 16 seconds. The angular acceleration of the motor wheel is, ओमेगा पूछा है, बहुत सिंपल है ये. बहुत ही सिंपल है ये. पहले तो मैं ओमेगा 1 फाइंड आउट कर लूंगा. ओमेगा 1 is 2 pi n1 upon 60, that is 2 pi 1200 upon 60. So this will be a 6 2s are 12, 2 to the 4, 40 pi radian per second. Omega 2 is 2 pi n2, n2 मतलब 3120 upon 60, 6
5 are 6 2s are 50 to 104 pi radian per second. This is omega 2, and alpha is equal to omega 2 minus omega 1 upon time t. So that will be 104 pi minus 40 pi upon t is 16 seconds. So this will become pi by 16 तो अलग आएगा 4 6 64 16 4 का. So that is actually 4 pi radian per second square. That's the answer B. I hope this is clear to you. Okay, we stop here, take a lunch break, we'll resume after half an hour. Okay, let's stop here now.